Hello dear students. So we are discussing the chapter life process and we come to the last topic of the chapter life process, that is excretion. So after discussing excretion we can complete the chapter called as life process. So a short revision, what is life process? Life process are the process which takes place in the living organism which makes them keep alive, or the living organisms are able to be alive because of this life process. In our chapter we have to discuss the 4 important life process, out of which we have completed the 3 life process, that is your nutrition, respiration, transportation, and now we have to discuss the last life process, that is excretion. So in this video we are going to discuss the excretion in detail. Okay, so basically what is excretion? ठीक है, एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है? सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन एक्सक्रीशन. सी द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, okay, the metabolic activities in the body generates many kind of waste. Okay, so as we all know, in human body there are many metabolic activities going on. What is metabolic activities? There are many chemical reactions, there are many types of reactions which are going inside our body. So these chemical reactions produces some waste. So the waste produced by the chemical reaction inside our body can be termed as the metabolic waste, right? So the metabolic activities, so in our body there are many metabolic activities taking place which generates many kind of waste. Now the waste is nothing but the CO2 can be the waste which is produced in our body in the metabolic activities. Uric acid can be the waste which is produced by the metabolic activities. Urea, right, uric acid, urea, carbon dioxide. So these are some examples of common metabolic waste. Still we have a big list of the metabolic waste. So these waste has to be eliminated outside our body. If these metabolic waste are not eliminated outside our body, then the life process can stop. So it is very important, friends, that we must eliminate this metabolic waste outside our body. So it is a process in which the waste आर रिमूव्ड फ्रॉम आर बॉडी. ठीक है, अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के वजह से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट को हमें एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा. अगर आपने एक्सक्रीट नहीं, मतलब अगर अपने बॉडी ने उसको एक्सक्रीट नहीं किया तो अपने बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है और अपना लाइफ प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकता है. सो अगर अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है तो ये वेस्ट को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैंने न्यूट्रिशन के वीडियो में भी आपको एक बात बोला था, व्हेन वी गिव सम इनपुट द आउटपुट हैज टू बी आल्सो लाइक टेकन आउट, राइट? सो नो, ऐसे नहीं होना चाहिए सिर्फ इनपुट जा रहा है बट देयर इज नो आउटपुट. सो बोथ शुड हैपन, इनपुट एंड साथ साथ आउटपुट भी होना चाहिए. ठीक है, तो वेस्ट भी अपने बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए, राइट? अब मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली अपने बॉडी के अंदर क्या कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट है? फर्स्ट इज डाइजेस्टिव वेस्ट. डाइजेस्टिव वेस्ट, राइट? सो हम जब फूड कंज्यूम करते हैं, इन द न्यूट्रिशन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव वेस्ट. व्हेन वी कंज्यूम द फूड, right, after consuming the food our body absorbs the nutrients from the food. After absorption of nutrients, after absorption of the water, then whatever is the remains, that remains is nothing but your digestive waste. मतलब डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव वेस्ट. एंड दैट डाइजेस्टिव वेस्ट इज देन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स. एंड फ्रॉम वेयर दिस डाइजेस्टिव वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द एनस. सो अब हम एनस से डाइजेस्टिव वेस्ट को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं और वो होना चाहिए. अगर एक्सक्रीशन स्टॉप हो गया तो लाइफ प्रोसेस समझो स्टॉप हो गया. ठीक है, चलो. So second waste is called as your respiratory waste. What is respiratory waste? The waste which is being produced because of the respiration process. Now हमने एक वीडियो भी देखा था respiration करके. So respiration process में कुछ waste generate होता है, जैसे कि CO2. So this is actually the byproduct. ठीक है, ये एक्चुअली अपने बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं ना उसका बाय प्रोडक्ट है, बट ये तो एक वेस्ट है, इसका कोई यूज नहीं है. अपने बॉडी को इसका कोई यूज है ही नहीं, तो ये तो बन गया वेस्ट. सो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट करना पड़ेगा आउट. सो हम मोस्टली रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू इसको एक्सक्रीट करते हैं. व्हेन वी इनहेल वी टेक इन द ऑक्सीजन एंड व्हेन वी एक्सहेल मीन्स वी आर एक्सक्रीटिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट? हम एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, राइट? सो दिस इज द रेस्पिरेटरी वेस्ट. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रेस्पिरेटरी वेस्ट एंड सम नाइट्रोजीनियस वेस्ट. नाइट्रोजीनियस वेस्ट
लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, राइट, इसको भी एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी यूरिया, यूरिक एसिड जो है ये बेसिकली हम अपने ब्लड को जब फिल्टर करते हैं, सो आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड वी गेट सम वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, राइट। सो आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, आफ्टर गेटिंग दिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट, क्या ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट अपने बॉडी के अंदर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ये 3 टाइप के वेस्ट को हमें अपने बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट? डाइजेस्टिव वेस्ट, आफ्टर न्यूट्रिशन जो भी बचेगा डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर द रेस्पिरेशन प्रोसेस जो गैस आपके पास रहेगा उसको अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, व्हेन वी फिल्टर द ब्लड, राइट, अपना ब्लड जो है वो एक बेस्ट मतलब हमने ट्रांसपोर्टेशन के वीडियो में देखा था ब्लड और ब्लड के फंक्शंस, राइट। सो ब्लड इज गोइंग टू कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट इन आवर कंप्लीट बॉडी सिस्टम्स, राइट। सो व्हेन इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट to various different parts of body, automatically the blood is going to get impure, so that impure blood has to be then purified. So that purification process is mostly done by some important organs like your kidneys, ठीक है। अपना ब्लड का प्यूरिफिकेशन लीवर भी करेगा और स्प्लीन भी करेगा, ठीक है। सो अपना जो किडनीज है, किडनीज ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड, ओके। चलो, सो आई होप सो द एक्सक्रीशन कंसेप्ट इज क्लियर। आई होप सो एवरीबडी इज नोटिंग डाउन इट। सो बस सुनना नहीं है, साथ साथ नोट्स भी लिखना है। आज थोड़ा मस्त मजेदार डायग्राम्स आने वाले हैं, सो आपको डायग्राम्स वगैरह अच्छे से पेंसिल एंड स्केल से ड्रॉ करना भी है, ठीक है। चलो, नाउ आफ्टर दिस, नाउ वी कम टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, a very important question. Many of the times this question has been asked in a boards, so you have to prepare this question at your level best, okay? So pay attention, this will not be a too lengthy video, okay? So अभी human excretory system, उसके बाद नेफ्रॉन के ऊपर पढ़ना है, excretion in plants पढ़ना है, खत्म, ठीक है। तो अब भी से लेके एक 15-20 मिनट्स के लिए सबका अटेंशन प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज। अब देख पा रहे हो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको 2 किडनीज मिलेगा और क्या क्या मिलेगा? यूरेटर्स, ठीक है। सो दीज आर द 2 किडनीज, किडनी नंबर 1, किडनी नंबर 2, ऐसे 2 किडनीज होते हैं अपने पास, ठीक है। हाँ, यूरेटर्स, सो दिस पाइप फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे यूरेटर्स। यूरेटर्स के बाद रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर अपना यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब पाइप और डक्ट फ्रॉम वेयर द यूरिन गोज आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ऐसा होता है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दीज आर द पार्ट्स, दीज आर द 4 मेजर पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2 किडनीज रहेगा, यूरेटर रहेंगे जो किडनी से एग्जैक्टली यूरिन को अपने यूरिनरी ब्लैडर में फिलअप करने का काम करेंगे। एक बार यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो गया, देन इट इज गोइंग टू ओपन एंड देन द यूरिन इज गोइंग टू पास आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द यूरेथ्रा, okay, is this clear? Yes. So now what is the function of kidney, what is the function of ureters, what is the function of urinary bladder, what is the function of urethra, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो किडनीज, इट फिल्टर्स ब्लड। सो किडनी क्या करता है बेसिकली? किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ये किडनी क्या करता है जिसको आप बेच के आईफोन लेते हो? ये बेसिकली काम क्या करता है? फिल्टर्स ब्लड। इसका मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। अभी ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन की क्या जरूरत है? अरे जब ब्लड अपना पूरा सर्कुलेट होता है ना, तो उसके अंदर ना बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स आ जाता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल मतलब क्या? यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये भी आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। बट बाद में फिर से और रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो बात अलग है। बट ऐसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट आने की वजह से उसका फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो किडनीज क्या करता है बेसिकली? इट फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट, ठीक है। एंड जो भी अपना वेस्ट रहेगा, वेस्ट मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, उसको अपन एलिमिनेट कर देंगे। यूरेटर्स, यूरेटर क्या करता है? इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, मतलब एक छोटा सा पाइप टाइप होता है, ये लोग क्या करते हैं? बस यूरेटर का काम बहुत सिंपल है, पूरा काम तो किडनी करेगा, पूरा फिल्ट्रेशन का काम किडनी करेगा। किडनी के अंदर बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं, टोटल 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर होता है। इन अ किडनी देयर आर टोटल 10 लाख नेफ्रॉन्स एंड दिस नेफ्रॉन्स बेसिकली फिल्टर्स द ब्लड। आफ्टर फिल्टर, ठीक है, फिल्टर करने के बाद ब्लड तो चला जाएगा, ठीक है। मतलब अपना इम्प्योर ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू आएगा,
मतलब ये इसके थ्रू आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी वेस्ट है वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो भी प्योर ब्लड है वो फिर अपने वेना केवा से फिर से बॉडी के पास चला जाएगा। और एक बार थोड़ा कलर चेंज करके, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके और एक बार रिवाइज करते हैं। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड अभी के लिए इम्प्योर ब्लड मतलब क्या, द ब्लड विच हैज नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऐसे ब्लड को अपन बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, ठीक है। सो ब्लड पूरे जब बॉडी पार्ट्स में घूम के आएगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंप्यूरिटीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ द इम्प्योर ब्लड इज गोइंग टू कम फ्रॉम एओर्टा, एओर्टा से वो ब्लड ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से एओर्टा से ब्लड आएगा, एओर्टा से ब्लड आने के बाद इट इज गोइंग टू गो इन द किडनी। किडनी का काम क्या है भाई, फिल्टर करने का काम है, बस फिल्टर करेगा। सो फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट निकलेगा वो वेस्ट जाएगा डायरेक्टली यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरेटर से सीधा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। और जो भी प्योर ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड क्या करेगा, वेना केवा से फिर अपने बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। अगेन इम्प्योर ब्लड, ये भी दोनों भी साइमल्टेनियसली काम करते हैं, कुछ ब्लड कुछ लाइक ब्लड इधर भी जाएगा और कुछ ब्लड इधर भी जाएगा, बोथ द किडनीज वर्क साइमल्टेनियसली, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते अपन, ठीक है। सो ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे जाएगा, हाँ इम्प्योर ब्लड समझो यहाँ पे आएगा, इधर भी ब्लड जाएगा और इधर भी ब्लड जाएगा, ठीक है। किडनी क्या करेगा, दोनों किडनी फिल्ट्रेशन का काम करेगा, उसमें जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, इट विल गो एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म योर इन द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे कलेक्ट हुआ जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा, एंड जो भी फिर प्योर ब्लड है वो इट इज गोइंग टू गो टू द बॉडी, इट इज गोइंग टू गो टू द बॉडी फ्रॉम वेना केवा। ओके, सो दिस इज हाउ द किडनी works or this is how the human excretory system works. Ureters मतलब it drain out urine from kidney. So यहाँ से जो भी वेस्ट रहेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको ड्रेन करके यहाँ पे कलेक्ट करेगा, उसको ड्रेन करके यहाँ पे कलेक्ट करने में हेल्प कौन करेगा, यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर्स यूरिन, हाँ यूरिनरी ब्लैडर मतलब ये जो होता है ना, ये कुछ स्मूथ मसल्स से बनते हैं और यहाँ पे बेसिकली यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिन कलेक्ट होने के बाद यहाँ के मसल्स ऐसे एक्सपांड होते हैं, जब यहाँ के मसल्स एक्सपांड होते हैं तो फिर वहाँ से कुछ सिग्नल्स अपने ब्रेन को रिलीज होता है, दैट नाउ फिर जब ब्रेन को सिग्नल रिलीज होता है देन द पर्सन ट्रिगर्स, अरे नाउ आई हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन, एंड देन द पर्सन गोज फॉर द यूरिनेशन बिकॉज योर देयर आर सम स्पेशल मसल्स, ठीक है, योर देयर आर सम स्पेशल मसल्स जो अभी डेफिनेटली इसके अंदर जब यूरिन भरेगा तो दिस मसल्स आर गोइंग टू एक्सपांड, एंड दिस व्हेन दिस मसल्स आर गोइंग टू एक्सपांड सिग्नल इज रिलीज टू योर ब्रेन। सो कुछ सिग्नल्स न्यूरॉन्स के थ्रू, कुछ सिग्नल्स अपने ब्रेन, नर्व्स के थ्रू कुछ सिग्नल्स अपने ब्रेन्स को जाते हैं, एंड द ब्रेन ट्रिगर्स and then the person realizes now he has to go to the urine, and when the person goes to the urine then this urethra is going to open and then the person is going to release the urine outside, right? So this is how the human excretory system works. Urethra transmit urine outside the body. Okay, so urethra is in our control. Urethra के muscles होता है ना अपने control में होता है, ठीक है। So when we go to the washroom at that time only we can like exactly go for the urination. At other time we don't go for the urination because we have the control on opening of the urethra, right? Okay, चलो, so the kidney has the filtration unit called as nephrons. Yes, अभी किडनी को अगर आप जूम करके देखोगे ना, इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे, एक किडनी के अंदर आपको ऐसे 10,000 नेफ्रॉन्स मिलेंगे। बेसिकली किडनी के अंदर अभी अपन जूम करके देखते हैं, किडनी के अंदर बेसिकली आपको नेफ्रॉन्स मिलेंगे, एंड ये नेफ्रॉन्स एग्जैक्टली ये किधर गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली कौन हेल्प कर रहा है, नेफ्रॉन्स। नाउ लेट्स study in detail about nephrons. I hope so till here the concept is clear. So everybody has to write it down, draw the diagram carefully. Now we will discuss about nephrons, ठीक है, जो कि बहुत important part है, ठीक है, बहुत important part है। चलो nephrons. So what is nephrons? मतलब किडनी के अंदर, ये देखो किडनी, यहाँ पे देखो ये किडनी, ठीक है, किडनी को अगर अपन जूम करेंगे, किडनी के अंदर ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहेंगे, किडनी को अपन जूम करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। सो दिस इज ओनली वन सिंगल नेफ्रॉन, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन है। वैसे अपने किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स आर देयर इनसाइड द किडनी, ठीक है। एंड ऑल दिस नेफ्रॉन्स आर एक्चुअली हेल्पिंग टू फिल्टर द ब्लड। चलो ये एग्जैक्टली कैसे होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। सो फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट कौन होता है, नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। यस, अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे आपको एक बोमेन्स कैप, मतलब यहाँ से अपना नेफ्रॉन शुरू होता है, पूरा अपना नेफ्रॉन ही है, ठीक है, ये पूरा अपना नेफ्रॉन है। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। आई होप सो एवरीबॉडी कैन सी दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है।
अब ये बोमेंस कैप्सूल क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। काम करते हैं, पहले थ्योरी को एक साइड पे रख देते हैं। फर्स्ट आई एक्सप्लेन द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की शुरुआत कहां से होती है? रीनल आर्टरी से। बेसिकली आर्टरी क्या करती है? आर्टरीज आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, दोनों ब्लड में भी आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम किसका रहेगा? किडनीज का, ठीक है। सो ये ब्लड, ठीक है, ये मतलब आर्टरीज एक्चुअली आपका जो हार्ट से ब्लड आता है ना, ठीक है, दैट इज इन अ रिच प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में, बट उसके अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी रहेगा और नाइट्रोजीनियस वेस्ट एलिमिनेटेड रहेगा तो अपन उसको बोलेंगे 100% प्योर ब्लड। हाफ काम अपना किसने किया है? ब्लड को प्योर करने का हाफ काम कर दिया अपने लंग्स ने। लंग्स के अंदर बेसिकली गैशियस एक्सचेंज होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे चला गया और वहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो हार्ट फिर अपने ब्लड को पंप करेगा आगे। सो हार्ट जब अपने ब्लड को आगे पंप करेगा, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम रीनल आर्टरी। बट ये अभी 100% प्योर ब्लड नहीं है, इसके अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। जब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, फिर हम बोल सकते हैं कि येस, नाउ द ब्लड इज 100% प्योर ब्लड, ठीक है। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट स्टिल 100% प्योर नहीं है, बिकॉज उसके अंदर अभी भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। चलो, सो द नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऐसे अपने आर्टरीज के थ्रू सबसे पहले जाके वोमेंस कैप्सूल के अंदर। अभी वोमेंस कैप्सूल जो है ना, ठीक है, काम करते हैं इसको चाहे तो हम थोड़ा चार्ट के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, सो आपको ये थोड़ा समझने में ईजी जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लेक्चर में भी किया था, लाइक एक चार्ट अगर आपके सामने रहेगा ना, तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। सो इम्प्योर ब्लड, सो आपका जो इम्प्योर ब्लड रहेगा, इम्प्योर ब्लड मतलब ब्लड विच इज हैविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। So impure blood which is having nitrogenous waste, it is going to come from where? It is going to come from your renal artery. ये कहाँ से आएगा? आपके renal artery से। अब बोलोगे renal artery, artery मतलब वो ये renal artery मतलब आप बोलोगे ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो प्योर होता है। अरे प्योर होता है, बट उसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है, जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सो renal artery, हाँ, रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी से जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड है, बट उसके अंदर अभी भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। सो रीनल आर्टरी से पहले अपना इम्प्योर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड जो है वो अपने बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू एओर्टा, कनेक्टेड टू एओर्टा, ठीक है। हाँ, उसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा? उसके बाद अपना ब्लड फिल्ट्रेशन होगा किडनीज के अंदर, ठीक है, कनेक्टेड टू इट। उसके बाद क्या होगा? ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। ब्लड फिल्ट्रेशन बेसिकली कहाँ पे होगा? ठीक है, ये ब्लड फिल्ट्रेशन बेसिकली कहाँ पे होगा? ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन किडनीज, एंड किडनीज में कौन ब्लड फिल्टर करने वाला है? नेफ्रॉन, ठीक है। सो ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? किडनीज में होगा, और किडनीज में भी आपका ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करने वाला? किडनीज के अंदर नेफ्रॉन। So nephron are basically going to help you in the blood filtration. हाँ, blood filtration होने के बाद then the blood, यहाँ पे देखो, blood filtration होने के बाद then the blood is going to go again back to the body by vena cava, ठीक है। So blood filtration होने के बाद मतलब रीनल वेन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। रीनल, जैसे रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट था, वैसे रीनल वेन, ये आर्टरीज एंड वेन्स को अपन रीनल क्यों ऐड करते हैं? अगर कोई आर्टरीज एंड वेन्स किडनी के अंदर रहेगा तो उसके सामने रीनल ये वर्ड ऐड करने का, ठीक है। सो रीनल वेन इज गोइंग टू कैरी द 100% प्योर ब्लड, एंड रीनल वेन इज कनेक्टेड टू वेना केवा। सो आपका जो रीनल वेन रहेगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द वेना केवा, ठीक है। हाँ, अब वेना केवा से जो ब्लड जाएगा दैट ब्लड विल बी द 100% प्योर ब्लड। इसके अंदर अभी कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, ठीक है। अभी वेना केवा से जो भी ब्लड जाएगा दैट इज योर 100% प्योर ब्लड, ठीक है। अब बीच में ये फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली अभी थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग। बेसिकली फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन फिल्ट्रेशन? सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है बोमेंस कैप्सूल में। कहाँ पे होता है? बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इट एब्जॉर्ब्स
the nitrogenous, it absorbs the nitrogenous waste. Now what can be the nitrogenous waste? एक बार देखने दिए, कलर थोड़ा दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, it absorbs the nitrogenous waste. What can be the nitrogenous waste? Like urea, right? यूरिक एसिड, राइट, यूरिया, यूरिक एसिड, फिर कुछ वाटर का भी प्रोपोर्शन रहेगा, फिर कुछ ग्लूकोज रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज रहेगा, अमाइनो एसिड रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब होगा आपके बोमेंस कैप्सूल में. सो दिस बोमेंस कैप्सूल इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल दिस थिंग्स, राइट. हाँ, अभी बोमेंस कैप्सूल इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, तो बचा हुआ ब्लड क्या हो गया? बचा हुआ ब्लड हो गया प्योर. सो बचा हुआ ब्लड हो गया प्योर, मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो इम्प्यूरिटीज़ है, एब्जॉर्ब करने के बाद अपने जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, राइट. So after absorption, whatever impurities are there, that impurities are going to go from Bowman's capsule के नीचे एक आपको एक स्पेस मिलेगा, राइट. यहाँ से ऐसे अपने impurities जाएगा सीधा लूप ऑफ हेनले में, ऐसे आगे जाके एक यूटर्न रहेगा. सो अपना सारा impurities यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते डायरेक्टली एक जाएगा अपने एक डक्ट के अंदर. इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको अपन डक्ट बोला तो भी चलेगा. सो डक्ट से जाएगा एंड दीज डक्ट्स आर कनेक्टेड, दीज डक्ट्स आर देन कनेक्टेड टू द यूरेटर, ठीक है. ये डक्ट जो होते हैं ना, फिर ये डक्ट से यूरेटर से कनेक्टेड है, तो यूरेटर से फिर अपना यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है. सो दिस डक्ट इज देन कनेक्टेड टू द यूरेटर्स, ठीक है. सो यहाँ पे एग्जैक्टली अपना फिल्ट्रेशन का काम होगा, और अपना जो भी इंप्यूरिटीज है, अभी हमने देखा जो भी इंप्यूरिटीज है, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है. एंड लूप ऑफ हेनले जो होता है ना, ये यूटर्न जो यहाँ पे ऐसे लूप है, इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. बेसिकली लूप ऑफ हेनले में ना फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है. लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? रुको, आपको ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है. सो लूप ऑफ हेनले, ठीक है. इसके बाद आफ्टर बोमेंस कैप्सूल देन कम्स लूप ऑफ हेनले. सो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है पता है? रीएब्जॉर्प्शन, किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा लूप ऑफ हेनले में? ओनली ग्लूकोज, फिर अमाइनो एसिड एंड वाटर, सिर्फ इनका होगा रीएब्जॉर्प्शन. बाकी तो नाइट्रोजिनस वेस्ट था, ये लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट के कैटेगरी में नहीं आते, बट अपना बोमेंस कैप्सूल इनको भी क्या करेगा? इनको भी बेसिकली अपने ब्लड से दूर करेगा, फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है. मतलब इनको भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में फिर से इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है. हाँ, इसके बाद जो भी बचेगा, ठीक है, इसके बाद जो भी बचेगा लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है. फिर बचा हुआ जो क्या बचा? यूरिया बचा, यूरिक एसिड बचा, यूरिक acid, and that will make a combination of urine, and this is going to from ureters, these are going to collect in the urinary bladder, ठीक है. सो ये यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा एंड फिर अपना यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. एग्जैक्टली ऐसे होता है अपना फिल्ट्रेशन का काम, ठीक है. और एक बार अपन ये डायग्राम से रिवाइज करेंगे, ठीक है. इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से ऐसे जाएगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर. पहले एब्जॉर्प्शन होगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. किस का एब्जॉर्प्शन होगा? यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्प्शन होगा. इनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो प्योर ब्लड रहेगा वो ऐसे धीरे चला जाएगा अपने वेन्स के अंदर, ठीक है. वेन्स के अंदर फिर अपने बॉडी पार्ट्स के चला जाएगा. सो प्योर ब्लड आर्टरी से अपना ब्लड, इम्प्योर ब्लड प्योर होके वेन में चला जाएगा, और उसके जो भी इंप्यूरिटीज रहेंगे वो ऐसे आगे चला जाएगा. मतलब सबसे पहले इंप्यूरिटीज कैसे जाएगा? पीसीटी में जाएगा. मतलब बोमेंस कैप्सूल का एकदम नीचे वाला पार्ट है ना, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. स्टार्टिंग पार्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल के नीचे वाला, ठीक है. स्टार्टिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को अपन पीसीटी बोलते हैं, और एंडिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को अपन बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो पीसीटी से जाएंगे डायरेक्ट लूप ऑफ हेनले आएगा. लूप ऑफ हेनले में क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन. क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन. किसका? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, इन तीनों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, बिकॉज ये एक्चुअल में वेस्ट नहीं है, ठीक है. नाइट्रोजन इस वेस्ट नहीं है, इसके लिए उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा. और वेस्ट कौन था? यूरिया, यूरिक एसिड. सो यूरिया, यूरिक एसिड यहाँ से जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड ऐसे जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मतलब डक्ट में जाएगा, एंड यहाँ से रिलीज होएगा अपने यूरेटर्स के अंदर. यूरेटर्स के अंदर जाने के बाद इट विल बी कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर. देखो, किडनी से यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर, एंड फिर वहाँ से यूरेथ्रा, ठीक है.
आई होप सो नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर. सी अपन इसको रीड कर लेंगे. बोमन्स कैप्सूल इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट्स यूरिन. सो बोमन्स कैप्सूल क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा. एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन याद रखना, ठीक है. इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से आएगा और प्योर ब्लड रीनल वेल से जाएगा, ठीक है. हाँ, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट्स यूरिन. हेनलेस लूप, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर. ये हेनलेस लूप, लूप ऑफ हेनले. यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर. देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर. हाँ, फिर ये यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होगा और अपना यूरेथ्रा से यूरिन इज गोइंग टू बी लेफ्ट आउट, ठीक है. सो बेसिकली अगर आप ये किडनी देखोगे, किडनी के अंदर आप देख सकते हो. सो यहाँ से ब्लड आएगा नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होगा एंड फिर प्योर ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा. इम्प्योर ब्लड आएगा, नाइट्रोजिनियस वेस्ट वाला ब्लड आएगा, यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा. प्योर ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा और जो भी वेस्ट है फिर वो यूरेटर की तरफ जाएगा, यूरेटर की तरफ जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा, ठीक है. एंड दिस इज हाउ द बोमेन्स कैप्सूल और द नेफ्रॉन लुक. सो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक को अपन बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल और एक को बोलते हैं अपन लूप ऑफ हेनले और एक को अपन बोलते हैं डक्ट, ठीक है. सो ब्लड ऐसे आएगा, पहले इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर होगा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर. यहाँ से जाएंगे लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में फिर से होता है रीएब्जॉर्प्शन, बिकॉज सब लोग वेस्ट नहीं है, ठीक है. रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर. हाँ, बचा कौन, यूरिया, यूरिक एसिड, वो एक्चुअल में वेस्ट है. सो यूरिया, यूरिक एसिड यहाँ से ऐसे जाएगा डक्ट से यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा बाहर, और यहाँ पे फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो बॉडी की तरफ चला जाएगा. एंड आपका जो इम्प्योर ब्लड था फिर वो यहाँ से जाते जाते प्योर भी हो जाएगा और वो यहाँ से वेन के थ्रू चला जाएगा, ठीक है. सो आई होप सो द कंसेप्ट इज क्लियर. सो नाउ दिस इज एक्चुअली द इमेज. ये एक्चुअल में एक रियल किडनी है, ठीक है. एक्चुअल में रियल किडनी का एक इमेज है जो मैंने गूगल से लाया आप लोगों के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. सो ये भी आपको पता होना चाहिए. सो ये आपको दिख रहा है किडनी. सो ये रहेगा उसका यूरेटर. सो यूरेटर से बेसिकली अपना यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा. यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी इंप्यूरिटीज़ है वो फिर वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ठीक है. सो रीनल आर्टरी एंड वेन, आपको यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स दिख रहा है, ठीक है. सो आर्टरीज के थ्रू, मतलब ये आर्टरीज के थ्रू इम्प्योर ब्लड आएगा और ये वेन के थ्रू प्योर ब्लड बाहर निकल के जाएगा, ठीक है. इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड एंड वेस्ट यहाँ से बाहर जाएगा. और फिल्ट्रेशन करने का काम किसने किया, ये किडनी ने किया, ठीक है. सो किडनी का बेसिकली डायमेंशंस भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. सो किडनी वैसे तो 2.5, किडनी वैसे तो अरे यार ये हाँ, किडनी वैसे तो 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर के थिकनेस में होता है, ठीक है. सो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ किडनी, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर का थिकनेस होता है. उसके बाद 90 सेंटीमीटर से लेके 130 सेंटीमीटर, ठीक है. 90 सेंटीमीटर से लेके 130 सेंटीमीटर तक उसका लेंथ होता है. अगर आप ये लेंथ देखोगे, ठीक है. सो अगर आप ये लेंथ देखोगे तो आपको मिलेगा 90 टू 130 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द किडनी, ठीक है. एवरेज नॉर्मल ह्यूमन का किडनी का अगर आप लेंथ देखोगे तो उतना होता है. एंड 5 टू 5.7 सेंटीमीटर का जो होता है दैट इज अ विड्थ. ऐसे ये विड्थ जो होता है ना, ये 5 से लेके 5.7 सेंटीमीटर का ऐसे विड्थ होता है, ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. और इस किडनी के अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे, एक किडनी के अंदर इन एवरेज 10 लाख नेफ्रॉन्स तो भी होते हैं. चलो, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट समथिंग कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी. ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में हीमोडायलिसिस के बारे में दिया हुआ है, डीडीयू करके. बट आपको ये भी पता होना चाहिए आज के रेट पे, सी देयर आर सम कंडीशंस लाइक नेफ्राइटिस, ठीक है. नेफ्राइटिस वेयर बेसिकली आपका जो किडनी है, किडनी के अंदर के जो नेफ्रॉन्स है, ठीक है, नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको अपन नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है. तो जब नेफ्रॉन्स के अंदर इन्फेक्शन होगा तो फंक्शन नहीं करेंगे वो. अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे तो ब्लड को फिल्टर करेगा कौन, ठीक है. समटाइम्स क्या होता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ इंजुरीज हो जाती है, ठीक है. तो वहाँ पे अपना किडनीज जो है वो डैमेज हो सकता है. किडनीज अगर डैमेज हो गया, किडनीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो गया, किडनीज के अंदर इन्फेक्शन हो गया, मतलब कोई बैक्टीरिया या कोई चीज़ों ने उसको जाके डिग्रेड कर दिया, उसको डीजनरेट कर दिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है. अगर
किसी के बॉडी के अंदर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो उनका बॉडी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो उस केस में किडनीज को फिर निकाला जाता है और आज के डेट पे टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी. सो आर्टिफिशियल किडनी इज अ मशीन which has some microcontroller and some sensors which are exactly going to do the work of a kidney. सो किडनी का क्या काम है अभी हमने डिस्कस किया, वो पूरा काम कौन करेगा, मशीन करेगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी. सो यू कैन सी आर्टरीज, वेन्स, ये अपना किडनी का काम करेगा एंड फ्रॉम दिस द यूरिन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. ये अपना यूरेटर्स का काम करेगा और ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. चलो, सो दिस इज गिवन इन योर सिलेबस. हीमोडायलिसिस. सो हीमोडायलिसिस भी एक आर्टिफिशियल मेथड है. अगर किसी की किडनी फेल हो जाता है तो हीमोडायलिसिस करके हम उनके ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है. सो हीमोडायलिसिस बेसिकली क्या होता है, लाइक इम्प्योर ब्लड को पहले लिया जाता है. इम्प्योर ब्लड को बेसिकली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर पास किया जाता है. अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर लाइक फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन, मतलब एक केमिकल मिक्स किया जाता है. इम्प्योर ब्लड के साथ ऐसे कुछ डायलिसिस का सोल्यूशन मिक्स किया जाता है. डायलिसिस का सोल्यूशन मिक्स करने के बाद आपका जो इम्प्यूरिटीज़ है, अभी इम्प्यूरिटीज़ क्या हो गया आपका, यूरिक एसिड को हम ब्लड से अलग सेपरेट करेंगे और यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और बचा हुआ जो ब्लड है दैट इज प्योर ब्लड. देन दैट प्योर ब्लड विल बी सेंट इन टू द ह्यूमन बॉडी बैक. सो अपने पास कुछ डायलिसिंग सोल्यूशन है, डायलिसिस करने के कुछ सोल्यूशन आपने सुना है, डायलिसिस, राइट. ये डायलिसिस करने के कुछ सोल्यूशंस आते हैं. सो जब हम इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालेंगे और डायलिसिस सोल्यूशन के साथ पास करेंगे तो वहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं. ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको सेपरेट करके हम अलग से कलेक्ट कर सकते हैं और प्योर ब्लड को फिर हम अपन उसके बॉडी के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हीमोडायलिसिस. इसको अपन बोलते हैं हीमोडायलिसिस. दिस कैन बी डन व्हेन किसी का किडनीज अगर फेल हो गए ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ड्यू टू सम स्वेलिंग, जिसको अपन नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है. उसके वजह से अगर कुछ हो गया तो ये एक सोल्यूशन है, ठीक है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है. बहुत सिंपल है, प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. अब ये अपने लिए वेस्ट होता है, अपने लिए नाइट्रोजिनियस वेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. बट प्लांट्स के लिए नाइट्रोजिनियस वेस्ट क्या होता है, ऑक्सीजन. तो वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं. एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के ऊपर भी डिस्कस किया था, राइट. ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड आउट ऑफ द प्लांट्स, राइट. प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स. हाँ, ये भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है. जब कोई प्लांट के सेल्स डेड सेल्स बन जाते हैं, आपने देखा रहेगा इनिशियली प्लांट का कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन होता है, राइट. डार्क ग्रीन कलर में आपको प्लांट्स दिखता है. बट धीरे धीरे आपने देखा रहेगा कुछ प्लांट्स के लीव्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे ना येलोइश कलर में चेंज होता है. अगर कोई प्लांट का लीव्स येलोइश कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ के सेल्स की डेथ हो गई. वहाँ पे जो सेल्स है बेसिकली ग्रीन कलर आपको देखने मिलता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, राइट. तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ का कलर, वहाँ पे प्लांट का कलर हो जाता है येलो हो गया, मतलब वहाँ के सेल्स की डेथ हो गई. मतलब वो पार्ट अभी कुछ काम का नहीं रहेगा. तो फिर वो येलो कलर का जो लीफ है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी दिन में नीचे गिर जाएगा. जो डार्क ग्रीन कलर का लीफ है वो कभी खुद से नहीं गिरेगा जब तक आप उसको खींचोगे नहीं. बट ग्रीन कलर बट येलो कलर के जो लीव्स होते हैं मोस्टली बड़े बड़े झाड़ों में आपने देखा रहेगा, येलो कलर के जो लीव्स होते हैं बेसिकली वो डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स, करेक्ट. सो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्रीट होते हैं. ऑटोमेटिकली उनके बीच का लिंक टूट जाएगा, उनके टिश्यूज वीक हो जाएंगे और ड्यू टू एयर और ड्यू टू सम अदर फैक्टर दे आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज. सो प्लांट्स में भी ऐसे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है. सो प्लांट्स में जो लीव्स एंड बार्क्स जब गिरते हैं ऑटोमेटिकली दैट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है. चलो, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द एक्सक्रीशन पार्ट एंड हियर वी हैव केम टू एंड ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस. सो लाइफ प्रोसेस का पूरा वीडियो हमने कंप्लीट किया है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसके अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एकदम डिटेल नोट्स मिलेगा. आई वांट एवरीबडी टू राइट डाउन द नोट्स, अंडरस्टैंड द नोट्स एंड स्टडी हार्ड. दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है. सो थैंक यू. विल मीट सून विद द अदर चैप्टर. सो अदर चैप्टर आई विल बी प्लानिंग सून ऑन कार्बन कंपाउंड्स और एसिड बेस्ड ऑन सॉल्ट्स. चलो, बाय, मीट विद द नेक्स्ट वीडियो.